Hello, friends, and this is an assignment and also series of taking up the prelims questions. These are mock questions, but then they must be having certain kind of utility, and also they must be having certain kind of craft into it, which can help us in revision and also help us to have the acumen for solving the questions faster. We have been doing this in the previous session also, and it helped us. So we want to inculcate more skills, and we want to bring it up to the excellent level. So here we start with the question number one. Question number one, consider the following statements regarding Harappan technology and crafts. Harappan used only iron to make weapons. Harappan practiced boat making. Harappans were aware of potter's wheel. Which of the following statements is correct? Mansi. So 2 and 3 is correct. 1 is wrong. They did not only use iron to make the weapons. They never used iron is not found over there, so that's why it's wrong. Basically, and it makes it becomes easy. But then Pravesh, can you tell me boat making? How do we find the evidence of boat making? Sir, exactly, I don't know. Okay. Anyone else? So Lodh city में we had the dockyard. So on that basis. डॉकयार्ड है, बिल्कुल सही बात है. और औशिक? हाँ सर, मतलब धोलावीरा डॉकयार्ड, दोथरम डॉकयार्ड हो गया, उसका मिल जाता है सर. ऑफ ए साइन और स्ट्रक्चर सील्स एंड सीलेंस के ऊपर भी हमें बहुत सारा एविडेंस मिलता है. It should have been answered by Pravesh anyways. Madana and Akhana, the two brothers, prominent statesmen during the 17th century, rose to the prominence under the Bijapur, Golconda, Nizam Shahi, Maratha kingdom. Pravesh. Sir, I'll leave this question. I'm not asking you to leave. I'm asking you to attempt. I'm not giving you a chance to leave it. Sir, I'll go for A. Huh? A. Ashik. सर बी, गोलकोंडा सल्तनत है सर. Madana and Akhana brothers were there. And they played a very important role. जैसे कि आप उनकी बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि देर आर इम्पोर्टेंट नोबल्स हु रोज इनटू प्रोमिनेंस, जैसे विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडेशन की बात होती है, हरिहरन बुक्का, सिमिलरली मदन एंड अखना, और देर आर मोर ऑल्सो इवन बिफोर औरंगजेब्स टाइम. जब हम बात करते हैं शाहजहां पीरियड एंड ऑल्सो जहांगीर टाइम पीरियड, तब से आप अगर साउथ में देखोगे तो वहां पर जब ये बीदर शाही, बीजापुर और बाकी जो सल्तनत थे, जो स्मॉल स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज वी कैन से, तो वहां पर हर जगह कुछ इंपॉर्टेंट नोबल्स थे. वो इंडियन मुस्लिम भी हो सकते हैं, वो अफ्रीकन भी हो सकते हैं, और वो बाकी डिसेंट के भी हो सकते हैं. सो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, वेरी बेसिक. इट्स अ क्लास 8 लेवल क्वेश्चन. Question number 3. Ancient India with the following textbooks, following books talks about India. The Periplus of Berthinsey, the Ptolemy's Geography, Pliny's Naturalis Historia. Ashik. डी सर, ऑल All of them are talking about Berthinsey. और Periplus of Berthinsey तो बहुत डिटेल में बात करती है. Ptolemy's Geography is not talking about the geography the way today it is. It is speaking in terms of classical geography. उस टाइम तो मैप भी वैसे नहीं है जैसे अभी मैप है. एंड प्लिनीज नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया भी इंडिया के बारे में ही बात करते हैं. तो मतलब जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द होल ईस्ट बेसिकली. तो डू नॉट सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट और बुक्स जैसे हम आज पढ़ते हैं. दे वर वेरी ब्रॉड, और ये जरूरी नहीं है कि सभी लोगों ने इंडिया विजिट किया था. दे ऑल, ये तीनों एग्जांपल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रीक क्लासिकल राइटिंग्स. चलो नेक्स्ट. ध्रुपद जॉनरे ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. हिंदुस्तानी होना चाहिए, हिंदुस्तानी नहीं. इट शोकेसेस कि जिसने क्वेश्चन बनाया मस्ट बी अ साउथ इंडियन कंटेंट मेकर. मान सिंह तोमर, द महाराजा ऑफ ग्वालियर, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ द्रुपद. सेंटेंस की मेकिंग भी इतनी सही नहीं है, मेनली रिस्पॉन्सिबल कुछ नहीं होता. तानसेन हु वाज इन अकबर्स कोर्ट इज द सिग्निफिकेंट द्रुपद सिंगर. मानसी. So both 1 and 2 are correct. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. मान सिंह तोमर जी के वहां थे वो पहले, और उसी के बाद में एज ऑफ 60 के बाद हम कहते हैं कि तानसेन जो है अकबर के कोर्ट में आए. तानसेन नाम भी उनको पहले ही दिया गया था, अकबर के कोर्ट में उन्हें ये नाम नहीं मिला. ध्रुपद तो ऑब्वियसली. प्रवेश, इन इंडिया व्हेन डू वी फाइंड द ओरिजिन ऑफ ध्रुपद? ओरिजिन कहा जाता है ध्रुपद का? एंशियंट टाइम्स, मिडिवल टाइम्स? The medieval times. मिडिवल टाइम्स में? Late medieval. लेट मिडिवल में? वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर करेक्ट. लेट मिडिवल में? Sir, 13th-14th century. तो लेट मिडिवल कैसे हो गया ये? 13th-14th सेंचुरी में कौन हो सकता है? 13th-14th सेंचुरी में बाबर?
Yes, sir. तो प्रवेश जी का जैसा कहना है, बाबर जब हिंदुस्तान आए और जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई तो उससे पहले उन्होंने ध्रुपद गाया। जैसे ही उन्होंने ध्रुपद गाया तो जो सामने जो सेना थी सिकंदर लोदी की, वो वाह 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 जब करने लगी, इतने में बाबर ने उन पर अटैक कर दिया। और इस तरह से जो बाबर थे उन्होंने ध्रुपद का भारत में प्रचार किया। करेक्ट Okay. है? करेक्ट क्या आपके हिसाब से करेक्ट है? नहीं तो sir, फिर it क्या is not. है? Sir, it will be in 15th-16th century. चलो 1516 में मतलब बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, शाहजहां। Yes, sir, during Akbar, sir. ड्यूरिंग अकबर टाइम कैसे? अकबर के टाइम में कैसे ध्रुपद कैसे? हाँ ये हो सकता है प्रवेश नहीं समझ पा रहे हैं बताने में, लेकिन मैं समझ सकता हूँ क्या सोच रहे हैं। अकबर जब तानसेन से मिले तो जैसे ही तानसेन ने उनको पेन ड्राइव दी, अकबर ने वो पेन ड्राइव से सब डाउनलोड किया ध्रुपद का और बाकी सब डिलीट कर दिया। जैसे ही वो डिलीट किया किसी को पता ही नहीं चला कि ये ध्रुपद पहले कहाँ था। और इस तरह से जैसे कि प्रवेश जी ने बताया, सबसे पहले ध्रुपद की शुरुआत अकबर ने की। ध्रुपद गायन में, क्लासिकल सिंगिंग में, वहां पर संस्कृत के शब्द होते हैं, ओम का उच्चारण होता है, उसके अंदर बहुत सारी मेडिटेटिव क्वालिटीज भी होती हैं। और आपको जैसा पता है ओम और सारा मेडिटेशन, योग सूत्र, ये सब कुछ जैसा कि हमें प्रवेश जी ने भी बताया कि वो सारी चीजें 13, 14 और 15, 16 सेंचुरी में ही भारत में आई थी। करेक्ट Yes, sir. है? करेक्ट। Sir, I am short of knowledge of this. So I What is can't what comment. bullshit you are talking about short of knowledge? मानसी, ओम का उच्चारण या ओम और जो योग है ये भारत में मिडिवल इंडिया में है कि एंशियंट इंडिया में? एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में। एंशियंट इंडिया में योग को आप कहां लेके जाते हो? ओम को आप कहां लेके जाते हो? कौन सी एज में? So I'm not sure about this. ओके नो इश्यूज। ओम इज ए शब्द। ओम जो टर्म है प्रेरणा, ओम जो है हिंदी है कि संस्कृत है कि मद्रासी है कि मराठी है कि ग्रीक है कि फ्रेंच है कि लैटिन है? Sir, according to me, Sanskrit. संस्कृत है। तो मानसी जी, संस्कृत का अगर ओम शब्द है तो कहां जा सकता है सबसे पीछे? So Vedic age. वैदिक एज। तो डेफिनेटली द रूट्स ऑफ ध्रुपद गोज बैक टू वैदिक एज। इसीलिए ध्रुपद गायन का जो ओरिजिन है, जो उसकी रूट्स हैं, वो आपकी वैदिक एज में जाती है। और वैदिक एज में भी इसको सामवेद से जोड़ते हैं। तो शॉर्ट ऑफ नॉलेज और ये अगर बकवास तुमने ज्यादा की तो मैं डेंटिस्ट के पास भेज के तुम्हारे दांत तोड़वा दूंगा सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to Vaishashika philosophical system, consider the following statements. It declares what it declares. It declares that salvation depends on fully recognizable atomic structure of the universe and differences from the soul. Vaishashika. समझिए सेंटेंस को ध्यान से। salvation depends upon fully recognizing the atomic nature of the universe and its difference from the soul. ओके एक टेक्निकल स्टेटमेंट है, हो सकता है हमें जानकारी हो सकता है हमें ना हो। दूसरा, इट क्लासिफाइज ऑब्जेक्ट स्ट्रिक्टली अंडर द 3 एलिमेंट्स लैंड, वाटर एंड एयर। औशिक सर 3 एलिमेंट नहीं होगा सर, 5 होगा, पंच तत्व जो। तो 3 सेकंड लगा लेता हूँ जी, माय अकॉर्डिंग स्टेटमेंट गलत। ओके प्रेरणा, लैंड वाटर। क्या बोलते हो आप? Sir, the answer is आंसर इज A, first option. हाँ, वन ओनली। Okay. करेक्ट। पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो उसकी सेंस भी बनती है कि पूरे यूनिवर्स को एटॉमिक नेचर में बांटा गया पॉसिबल है और उस सोल से फर्क है पॉसिबल है। इसके लिए कोई ऐसा वो नहीं। वैशाखिका स्कूल आपको पता होना चाहिए, 5 स्कूल है, मतलब न्याय, वैशाखिका, वो सारा एक सिस्टम है। इंडियन फिलोसफी 6 है बल्कि, शब्द दर्शन, नॉट 5 आई एम रॉन्ग, शब्द दर्शन है। 6 फिलोसफिकल स्कूल्स हैं। एंशियंट इंडिया, ओल्ड एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर दिया हुआ है, उसमें बेसिक भी दिया हुआ है, लेकिन शायद ये इतना नहीं होगा, लेकिन वी कैन ऑलवेज मेक आउट। Okay, Satavahanas started the practice of granting tax-free villages to Brahmanas. The official language of the Satavahanas was Prakrit. They issued mostly coins of gold. Pravesh. So 1 and 2 are correct. Third is wrong. Okay. So who was the first one to issue gold coins, Pravesh? Sir, मतलब dynasty या when? sir, Greek and Kushanas, they are considered as. He is right. Indo-Greeks and Kushanas were the first one. Kushanas issued the maximum good quality.
maximum gold coins were issued. Also, Gupta period is the the one can say is the age for that. So Satavahana official language was Prakrit, that is correct. और ये भी NCERT old NCERT में डायरेक्ट से वहां से उठा के दिया गया है. चलिए आगे. Later Vedic period, which of the following statements is not correct? King maintained standing army. Society came to be divided into four varna. The grant of land as sacrificial fee is not well established in the later Vedic period. Sacrifices and the performance of rituals became dominant mode of worship the gods. Which statement is not correct, Mansi? The third is not correct. The grant of land as sacrificial fee is not well established. Okay. Okay. Third is not correct. Huh? Ashik? नहीं सर, So fourth is true. Second is also सेकंड true. इज ट्रू सर, सी इज ट्रू. नॉट वेल एस्टेब्लिश नहीं होगा सर. पहला हो सकता है कि Sir, one can स्टैंडिंग also आर्मी be सर, incorrect. स्टैंडिंग की ट्राइबल फॉर्म था ना, तो स्टैंडिंग आर्मी जरूरी नहीं है. Exactly. तो मॉडर्न एज ऑफ महाजनपद Tribal से form होनी तो चाहिए. initially था ना. होनी Sir, चाहिए. tribal form initially था. प्रेरणा? Yes, sir, the option A is correct. King maintained a standing army. ये गलत है. मेंटेन स्टैंडिंग आर्मी नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी की जब हम बात करते हैं तब आप ये समझिए जब तक जनपद नहीं आएंगे और जनपद के बाद महाजनपद नहीं आएंगे, जब तक आप मगध और उसकी नंदास की बात नहीं करोगे, आप स्टैंडिंग आर्मी की बात ऐसे हैं. अभी अभी श्रेणी है, मतलब वो अभी बल है, अभी ट्राइबल है, अभी सेनानी है. अभी सेनानी है आपके पास, अभी आपके पास राजा है, लेकिन उसकी वॉलेंट्री आर्मी है, बली है. तो आई थिंक द फर्स्ट स्टेटमेंट मस्ट बी रॉन्ग, रेस्ट ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements with regard to the state of agriculture system in the Mauryan period. Mauryan state provided irrigation facilities and regulated water supply. Mauryan state employed slaves in agriculture to bring the virgin soil under cultivation. The new peasants were allowed remission in tax and supplied with cattle, seeds, and money. Kaushik? फर्स्ट वन इज ट्रू सर. मॉडर्न First is स्टेट true, correct. employed slaves in agriculture. से डाउटफुल है सर सेकंड वाला, क्योंकि डायरेक्टली लिखा हुआ है. तो आई थिंक सर आई विल गो फ्रॉम ए, वन ओनली सर. You want तो ऑप्शन ही नहीं है. one is correct. No, third is not correct. तो उसका ऑप्शन नहीं है ना, 1 and 3 नहीं है, तो फिर है. One, 1 and 3 Sir, कहाँ है I'll go पर? for D. I'll go for D, sir. You will go for D. Mansi? So only one. Only one. Prerna? Sir, D is the correct answer. मॉडर्न स्टेट एम्प्लॉयड स्लेव्स इन एग्रीकल्चर सर. Yeah. Pravesh, can you explain why D? Born in थर्ड तो करेक्ट होना चाहिए, थर्ड में कोई दिक्कत हाँ नहीं सर, है. थर्ड Why? से 1 and 3 सही होता है, लेकिन Sir, yes, sir. Sir, the Mauryan state employed slaves in the कर्मकारा. agriculture. एक शब्द है कृषि कर्मकारा, और उसके बाद आप स्लेव थे ना, डोमेस्टिक स्लेव नहीं थे. घरों में झाड़ू पोछा नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर में तो है ही. एक प्रोसेस है पूरा स्लेवरी का. आंचल आंचल हमने कवर किया है ना, ये एंशियंट मिडिवल वाले डॉक में तो है ही. हाँ जी. है ना? तो फिर Yes, आपने क्यों नहीं बोला? आपको भी बोलना चाहिए ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. गुप्ता पीरियड हु अमंग द फॉलोइंग वर द कोर्ट स्कॉलर्स? चंद्रगुप्ता 2, रवि कीर्ति, अमर सिम्हा, कालिदास. आंचल, विच इज रॉन्ग? बी क्विक. मानसी, बी क्विक. I'll go with 1 and 3. अच्छा, 1 and 3 वहां थे, आप ये कह रहे हो? वेरी सैड. यू आर राइट. Sir, answer है B. सर You will go अमर for B. सीमा एंड Yes, कालिदास अमर थे सर. सिम्हा, रवि कीर्ति, कालिदास, चालुक्य, पुलकेशिन के हैं. रवि कीर्ति, Yes. चालुक्यन पीरियड, अहियोले टेम्पल. चालुक्यन मानसी से टाइम. कर. क्वेश्चन नंबर 10. Jainism, it denied existence of gods, condemned Varna system, attainment of freedom from worldly bonds. Sir, just a second. Sir, हाँ? answer for 9th is B. हाँ B, right? बिल्कुल. बी बिल्कुल. जो बाकी लोग हैं वो पॉइंट्स लिखते जाइए. दिव्या जी आप भी लिखते जाइए, करुणा जी आप भी लिखते जाइए, खाली मत बैठिए, उंगलियां काट दी जाएंगी. So Ravi Kirti was during which time period? Under which चालुक्य king? चालुक्यन, चालुक्यन, पुलकेशिन.
किंग चालुक्य वो अपना था कुमार। ना। अरे हमने किया था मानसी, वो किंग अपना, वो क्या नाम है उसका, पुलकेशिन आइलोले टू। इंस्क्रिप्शन। हाँ हाँ सर, जी, पुलकेशिन चलो। पुलकेशिन टू, कोलेक्शन। मालप्रभा रिवर, पट्टाडक्कल, ये सारा उन्हीं का इलाका तो है। हाँ जी, चालुक्य तो बादामी है ये। फिर एक इधर ईस्टर्न चालुक्य है, और चालुक्य तो वेंगी है। हाँ जी सर। बाद में आएंगे। गो फॉर दोस वीडियोस विच आई हैव गिवन यू, उनको खत्म हाँ करो सुन सुन के। जी सर। क्वेश्चन नंबर 10, बोलो भाई। ए है सर। कौशिक। सर ए। पहला, सर इसमें दिया हुआ कि 3 सही है तो सी होना चाहिए इसका, क्योंकि सर पहला डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। हाँ सही बात है तो। डायरेक्टली नहीं हो सकता सर, हाँ? डिनाइड नहीं किया सर जैनिज्म। नहीं डिनाइड नहीं, उसने और गॉड को सेकंड भी नहीं। ऊपर, अपने को ऊपर माना है, गॉड को नीचे माना है, तो डिनाइड नहीं है। और पहला सर स्टेटमेंट सेकंड में रॉन्ग। लिखा हुआ है कि कंडेम द वर्ना सिस्टम, ऐसा नहीं। कंडेम द हम्म वर्ना सिस्टम तो ओनली थोड़ा 3। कंडेम वर्ड गलत है इसमें। थोड़ा ज्यादा तो बोला, जी सर, कंडम। कंडम किया है, अबॉलिश करने की बात नहीं की है, बुराई लेकिन की है उसकी। अनलाइक बुद्धिज्म, कंडेम द वर्ना सिस्टम। अनलाइक, बिल्कुल कंडम, ज्यादा कंडम किया है महावीरा जी ने। पुरानी एनसीईआरटी भी उठा के देखिए, क्लास 6 की, उसमें भी है ये। 11th क्लास में होगा, 6 में तो नहीं होगा। इट प्रेरणा क्या मेनली, हुआ? 2 3 तो क्या प्रेरणा। आंसर? सर मैं तो सी में C. जाऊंगा सर, क्योंकि सी हो सकता है। क्या लेकिन बोल रहे हो आप मानसी, तो प्रेरणा? Sir, C option is correct. 3 only. हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि इट सनलाइट बुद्धिज्म सर डिनाइड। अब कंडेम सर वर्ना सिस्टम, तो डायरेक्टली नहीं किया सर ये कंडेम, मतलब कंडेम शब्द एक बहुत वैसा है, मतलब कंडेम शब्द, हाँ मतलब मतलब इट है ओपन एंड। सब्जेक्ट। उन्होंने हार्श रहे हैं, दे हैव बीन लिटिल हार्श। और सर पहला यहाँ जो, पर हाँ सर क्या यहाँ बोले? पर ये जो लिखा हुआ है, जो सेकंड स्टेटमेंट है सर, वो तो कंप्लीटली रॉन्ग हो ही जाती है। तो हमारे पास हाँ दो ऑप्शन बने, ए और हाँ। सी। हम्म पहले में बोल रहा है डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स, हम्म। और थर्ड में बोल रहा है मेनली एम्स एट द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड। तो सर वो तो बुद्धिज्म का प्रिंसिपल है ना, कौन नहीं, सा वाला? थर्ड वाला। नहीं ये दोनों इनका का भी सर। है। जीव को तो वो है ना, पुद्गलवाद, और वो बोलते तो है ही, जीव को वो मुक्त होना है। ठीक लेकिन है मैं सर। इस स्टेटमेंट पे बोल रहा हूँ कि महावीर और जो जितने भी जैन धर्म के भगवान हैं, उन्होंने अपने आप को, मतलब आई थिंक आई एम मे बी स्वैपिंग इट, इट डिनाइड, तो आई एम लिटिल कंफ्यूज अबाउट इट, कि दोनों में से एक सर ने ऐसा बोला है। तीर्थंकर्स है ना, तीर्थंकर को जीवा उसके नीचे में रखते हैं गॉड को, कि वो हाँ सबसे मैं बोल रहा हूँ तो हायर डिनाइड, बींग है। हायर बींग बोलते हैं, और 24th तीर्थंकर जैनिज्म में महावीर है। नहीं तो डिनाइड ओके, क्यों बोल रहा है फिर? डिनाइड करेक्ट कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना सर, तो 1 गलत है ना इसमें। अच्छा मैं ठीक बोल रहा हूँ, ओके ओके ओके। इट डायरेक्टली नहीं बोले कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड नहीं है। आस्किंग करेक्ट, ओके ठीक है, थैंक यू। Mansi, Rigvedic period, women slaves were prevalent, land was vested property, child marriage was widely prevalent. Mansi, be quick. Question number 11. आंचल इसके बाद। So third would be incorrect according to me, and one should also be incorrect. Slaves were prevalent during the Rigvedic period. हो So गया, I'll चलो go with ठीक। 3. आंचल, Sir, 1 and 2. 1 is correct, second is wrong. सर लैंड वो वेल स्टैब्लिश ऋग वैदिक में, तो वहां पर लैंड नहीं होगा, वहां पर काउ होगा, तो तभी तो एक बोला जगह three छोड़ दिया पहले। उस समय लैंड का एग्जैक्टली। 1 is correct, second and third must be wrong. चलो आगे। Yes, थर्ड तो भाई, चाइल्ड मैरिज नहीं थी, चाइल्ड मैरिज तो है ही नहीं। सेंसुअल तो एंड लेकिन इलीगल। उस टाइम पे सर हम बात करते कि egalitarian सोसाइटी थी, तो वुमेन स्लेव्स भी कैसे आएंगी? अरे स्लेव तो कोई भी हो सकता है, इगैलिटेरियन स्लेव का मतलब ये नहीं है ना, स्लेव के अंदर भी इगैलिटेरियनिज्म है। इगैलिटेरियन डजंट मीन कि कोई स्लेव ही नहीं होगा। हम ये और बोलते वो हैं, दासी सिस्टम इगैलिटेरियन है ना, वो दासी और दासूस वाला सिस्टम भी। हाँ दासी दस्यु है, ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर आपके 4 हायरार्की नहीं बने एग्जैक्टली, पर स्लेव तो होगा। दस्यु तो है, मतलब दास दस्यु, फाणीज। तो इगैलिटेरियनिज्म डजंट मीन कि स्लेव, स्लेव को इतना एकदम ऐसे मत लीजिए कि स्लेव का मतलब बस दूसरा कौड़ा ही मार रहे हैं। वो भी नॉर्मलाइज पार्ट ऑफ सिस्टम है। बाद में उसके कुछ रिपरकशंस भी हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर स्लेव्स की हमने बात की। तो शब्द पे ध्यान दो कि शब्द क्या बोल रहा है, तभी पकड़ पाओगे, और तभी ऐसे ही पढ़ना है। चलिए आगे।
Sensual and lyrical dance form is a dance of love, passion, touching on the divine, human, sublime, and the mundane. It is highly stylized dance and some extent based on the classical Natya Shastra and Abhinay Darpan. The techniques of the movement are built around the two basic poses of Chok and Tribhanga. The torso movement is very important and is a unique feature of this dance form. Which of the following dance is the best described by the above passage? Bharat, Kathak, Bharatnatyam, Odissi, Satariya. तो कौन बोलेगा? मानसी? तब भरतनाट्यम। बिल्कुल सही बात। और किसी हाँ का कोई और आंसर? मैं तो बी मारूंगा। सतरिया नहीं हो सकता। सतरिया सतरी। संकीर्तन है, इन असम। असम में है, और वो भगवान मतलब वैष्णव धर्म को, वैष्णविज्म को है वो, तो वो ऐसा है ही नहीं। वो उसमें तो संकीर्तन है, उसके अंदर वो ढोल मजीरा है, तो ये हो ही नहीं सकता। ओडिसी हो सकता है, लेकिन ओडिसी इज ऑब्वियसली वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म है, लेकिन भरतनाट्यम का जो ओरिजिन है वो ज्यादा Then answer ना क्या कह answer रही C हो? is correct. Odissi. Sir, हाँ। Odissi सही answer. नहीं, ओडिसी सही आंसर। एक मिनट, ओडिसी अगर अभी रुक तो जाओ पहले, लेट अस डिराइव ना, कि हम डिराइव कैसे कर रहे हैं। अगर भरतनाट्यम सबसे एंशियंट है और नाट्य शास्त्र पे बेस्ड है, अभिनय दर्पण पे बेस्ड है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि टू बेसिक पोस्चर्स ऑफ चौक एंड द त्रिभंगा। अब त्रिभंगा पोस्चर जो है जिसमें तीन वो होते हैं, तो वो तो मतलब वो अगर अगर आप जनरल भाषा से देखेंगे तो वो आपको भरतनाट्यम में भी दिखाई देगा और ओडिसी में भी दिखाई देगा, कथक में नहीं होगा। तो अगर मैं एलिमिनेशन पे जाऊंगा भी, हाँ बोलो। सर यहाँ पर ना एक वर्ड लिखा हुआ है, उससे ओडिसी निकल रहा है सर। यहाँ पर लिखा हुआ मुंडेन, तो है भरतनाट्यम के अंदर सर पैसेज के अंदर लिखा हुआ है सर मुंडेन, मैं तो पढ़ नहीं पाया। लिखा हुआ ना Sir, सर fourth 30। line में first word mundane. सबलाइम एंड द मंडेन, अच्छा ओके ओके, एक चीज से ठीक है मैं वैसे ठीक है, अच्छा गुड, इज अ गुड क्वेश्चन। मतलब सेंसुअस एंड लिरिकल, लव एंड पैशन, टचिंग अपॉन डिवाइन एंड ह्यूमन, तो सेंसेस वर्ड आप भरतनाट्यम के लिए यूज नहीं करते। ओडिसी के लिए भी आप एग्जैक्टली सेंसेस वर्ड ऐसे एकदम अलग से यूज करेंगे, बाकी के लिए यूज नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन द टॉर्सो मूवमेंट जो है, टॉर्सो यानी कि बॉडी का जो पार्ट की जिसकी बात हो रही है, उसकी मूवमेंट की बात हो रही है, तो इट्स अ गुड गुड एग्जांपल। लेकिन भरतनाट्यम और ओडिसी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, और जब